Namaste and welcome everybody. We are doing refraction and dispersion of light. Rather, we have completed the chapter. Now it's the time to complete the exercise part and understand it clearly. A ray of light passing from one medium to another does not bend its path if its angle of incidence equal to 0 degree. Now you may be thinking how it's 0 degree. Remember, when a light falls on a surface, the reflection of laws of reflection says that angle of incident is equal to angle of reflection. So when it is 0 degree, and how do we measure the angle of incident? From the normal, right? From the normal. So we may be saying that when it falls to the 90 degree, but when we talk of 90 degree, we are talking with reference to this plane. But here, when we measure the angle of reflection or incident, we measure it from the perpendicular, that is normal to the plane. So this, if it is falling from this way, this is 0 degree, and if it is 0 degree, angle of incident is 0 degree, angle of reflection will be 0 degree, that is it will retrace its path. Right now, the more is optical density of a given medium, the less is the speed of light through it. Correct? Water में light का speed कम होगा, vacuum में बहुत ज़्यादा होगा comparatively. The phenomena of splitting of white light into 7 colors is known as the phenomena of dispersion of light. Now, the point of the on the principal axis of a concave lens. Principal axis क्या होता है भाई? Of a concave lens. Concave lens क्या हुआ? ये है concave lens. No, this is convex lens. This is convex lens. तो concave lens कैसा होगा? ऐसा होगा. Concave lens. From where a beam of incident parallel ray appears to diverge is called focus of the concave lens. Right? Focus of the concave lens. एक ही जगह पर डाइवर्ज होता है, मतलब यहाँ से स्प्रेड करता है इसमें लाइट, और यहाँ पर ऐसा फील होता है कि यहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पर एक जगह पर एपरेंट यहाँ पर मिल रहा है. जबकि कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में एक जगह पर कन्वर्ज होता है. Okay, an object should be placed at the 2F point so that a convex lens form its real and inverted image of the same size. Go and see the page number. If you will see the page number 181, you will get to know how the image are formed when the object is placed at different position in convex lens. Now, write true and or false for the following statement. The basic cause of refraction is the change in the speed of light as it goes from one medium to another medium. Very correct. This is true. In an optically denser medium, the speed of light is more than the speed of light in vacuum. False. Dense medium में क्या होगा? Speed of light कम हो जाएगा. And obliquely incident ray. Obliquely means slanted, मतलब साइड से झुका हुआ रहता है, उसको कहते हैं ऑब्लिकली इंसिडेंट रे. ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट्स पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम. नहीं, ये नहीं होगा. ये डिपेंड करता है कि ये पास किस में कर रहा है. इफ़ इट इज़ गोइंग इनटू द डेंसर मीडियम, it will come towards the normal, and if it is passing to the rarer medium, it will bend away to the normal. So it is false. A coin kept at the bottom of an empty dry cup appears to rise up when some water is poured into it. Yes, बिल्कुल सही. ऊपर आने लगता है क्योंकि जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो अलग पोजीशन से होता है. बिकॉज ऑफ क्या हुआ? पानी क्या हुआ? डेंसर मीडियम हुआ, जिसके कारण लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है अलग पोजीशन से होता है. व्हेन द वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म
the yellow color in its bends more than the blue color. Now see the prism that is given on page number 176, and you will get to know the sequence of scattering of light in through the prism. You will observe in air all colors propagate with nearly the same speed, but in material medium light rays of different colors propagate with different speeds. Like the pattern is the sequence of light that get bending is Vibgyor, Vibgyor, Vibgyor. Now see the sequence. सबसे ज़्यादा कौन सा बेंड कर रहा है? सबसे ज़्यादा बेंड हो रहा है वायलेट, और सबसे कम बेंड हो रहा है रेड. तो क्या हुआ इसमें? हमारा क्या कह रहा है? वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म, द येलो कलर इन इट्स बेंड्स मोर देन द ब्लू कलर. अब येलो कहाँ पर आ रहा है? येलो यहाँ पर आ रहा है और ब्लू कलर यहाँ पर आ रहा है. तो ब्लू कलर क्या करेगा? ज़्यादा बेंड करेगा. In comparison to yellow color. Okay, now let's move to the next part. Which of the following condition is not necessary for a change in the direction of propagation when a light ray goes from one medium to another? So you read the different options and you will find that the incident ray must always have only the blue color. Is the wrong option. This is the wrong option. What you have to do, read the question carefully. Not necessary. Okay, so the light ray must be incident at an angle greater than 0 degree with respect to the normal to its point of incident. The two media must be transparent. Refraction होने के लिए transparent medium ही होना चाहिए. The two media must have different refractive indices. Right, correct. तभी होगा. अगर सेम मीडिया में अगर वो कर रहा तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. राइट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द बेंडिंग ऑफ light rays as it goes from an optically denser medium into an optically rarer medium? Now see the observe this diagram. Here the question is optically denser medium to an optically rarer medium. Even here, see here, when it is the light, see the direction of ray, it is from this direction. So it is moving from the denser to the rare, और ये नॉर्मल है. तो ये क्या होगा? डेंसर रेयर में जा रहा है तो ये क्या होगा? ये इससे अवे, नॉर्मल से अवे जाएगी, लेकिन ये स्ट्रेट दिखा रहा है तो ये नहीं होगा. सिमिलरली यहाँ पर जा रहा है कि रेयर से डेंसर से रेयर जा रहा है, एंड इट इज़ नाउ सी हियर, ये जो नॉर्मल से है अवे जा रहा है. इसका मतलब ये सही है. वेयर एज बाकी दो ऑप्शन को भी हम लोग रीड कर लें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट instead of just ticking, just finding the answer. Try to understand. Now see here it is the incident rays from this direction and it is moving from the denser medium to the rarer medium. अब dense से rare में जाएगा तो क्या होगा? इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये towards normal bend हो रहा है तो ये गलत हो गया. सिमिलरली ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया कि इतना तो ऐसा तो नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया कि सीधा ये नॉर्मल से ही निकल रही है. So this is wrong. So that you got the correct answer. Now here the angle between the incident ray and the emergent ray. Emergent ray क्या होता है? जब दो मीडियम के बीच में से जब लाइट रे निकल रही है तो जो बाहर जो निकल रही है इसको emergent ray कहा जाता है. Okay, the light that is means when light ray comes out from glass, it is called emergent ray. Now let's move to the next part. Which of the following figure correctly represent the passage of white light through a prism glass? See here, when the white light passes through prism, what happens? The white light gets split. It gets split. So what happens? तो ऐसा तो होगा नहीं कि वाइट लाइट ही बस निकलेगा. वाइट लाइट क्या होता है कि वो डिस्पर्स हो जाता है डिफरेंट कलर्स में. डिफरेंट कलर्स दैट इज़ 7 कलर्स.
और न्यूटन रिंग के बारे में तुम लोग जानते ही होगे, न्यूटन रिंग बनाए होंगे कि उसमें क्या 7 कलर्स को अगर जोर से घुमाया जाता है तो इट बिकम्स वाइट। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं कि वाइट कलर ही सिर्फ निकलेगा और ये इस तरह से डिवर्स करेगा, नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एंड यू नो द सीक्वेंस ऑफ बेंडिंग और डेविएटिंग, दैट इज़ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। तो उसका जो होता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है, दैट वी नो दैट विबज्योर। तो विबज्योर अगर होगा तो रेड वाला लाइट कम बेंड करेगा और वायलेट रे जो है वो ज़्यादा बेंड करेगा। तो दिस विल बी द आंसर। ये तो रॉन्ग सीक्वेंस है, दिस इज़ रॉन्ग सीक्वेंस। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, अगर ये लेंस है तो इसका जो बीच वाला पार्ट होता है, ये जो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस पर, दिस इज़ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। और यहाँ पर हम लोग कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्केव लेंस ऐसा होगा। लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट विल गो अनडेविएटेड। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट अगर जा रही है, रे इंसिडेंट रे जा रही है, तो वो क्या, वो अनडेविएटेड क्रॉस कर जाएगी। यू नो डिफरेंट कंडीशन, मूव पैरेलल कब करता है, प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से कब निकलता है और 2f से कब निकलता है। तो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट पार्ट, एंड इफ़ यू हैव नॉट, प्लीज़ गो टू दैट पार्ट, ओके। When an object approaches a convex lens, convex lens कैसा होता है, ऐसा होता है, okay। Convex lens from infinity towards its focus, the image formed by it keeps on shifting from the lens. Now see page, if you will see page number 181, you will understand how the image when moving towards the focus, how it is shifting away from the focus on the other side of the lens. अगर ये लास्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो कहाँ पर, फोकस पर आकर के इसका इमेज बनेगा। जबकि अगर 2f के बगल में रखा रहेगा तो इसका फोकस, इसका जो इमेज है f और 2f के बीच में बनेगा। तो क्या हो रहा है कि इमेज जो है कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेस अ कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टुवर्ड्स इट्स फोकस। नाउ सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है और अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा गया, फिर बियॉन्ड 2f रखा गया, फिर 2f पर रखा गया, फिर f पर रखा गया, तो इमेज क्या हो रहा है, कहाँ पर इमेज जा रहा है, कीप्स ऑन शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द लेंस। ये लेंस से इस साइड से और इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो दूर होता जा रहा है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। रिमेंबर डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर वो चीज़ नहीं बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर एंड फोकस पर रखा जा रहा है। यहाँ पर वो पॉइंट नहीं आ रहा है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, वो वाला कंडीशन नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ फोकस तक की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की बात नहीं हो रही, इसीलिए हम लोग का आंसर ये होगा। तानिया ग्रैंड मदर नीड्स अ लेंस टू रीड स्मॉल लेटर्स इन हर बुक। फॉर दिस शी शुड यूज़, ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस तो होगा नहीं, केप्ट एट अ डिस्टेंस बिटवीन f एंड 2f, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस नहीं होगा। एंड कॉन्केव लेंस केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। अगर इफ़ यू विल सी पेज नंबर 181 तो तुम्हें पता चलेगा कि अगर फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने पर बड़ा इमेज बन रहा है, तो कॉन्केव लेंस केप्ट एट अ डिस्टेंस बिटवीन f एंड 2f फ्रॉम द बुक नहीं होगा। तो जब So when you will practice the ray diagram, when objects are kept at different places, then you will get to know कि focal length के से kept at a distance less than its focal length from the book, तभी वो बड़ा दिखेगा। Now answer the following question in brief. Light propagate faster through a medium A than through another medium B. Which of the two medium has a higher optical density? Obviously
फास्टर, अगर जिसमें फास्टर होगा, अगर वो रेयरर है तभी फास्टर होगा, इसका मतलब मीडियम बी। स्टेट द कंडीशन अंडर विच नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट रे वुड टेक प्लेस व्हेन इट पासेस फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। क्या होगा जब इंसिडेंट रे जो होगा वो 0 डिग्री पर होगा, राइट एंगल पर हो जाएगा, और एक्चुअली ये होना चाहिए। State the condition under which no change in the direction of propagation of light ray would take place when it passes from medium A to medium B। एक्चुअली ये राइट एंगल की जगह ये तो 0 डिग्री होना चाहिए कि इंसिडेंट एंगल जो है 0 डिग्री पर होगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं, जब भी हम लोग एंगल मेज़र करते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, तो हम लोग कहाँ से मेज़र करते हैं नॉर्मल से, तो यहाँ पर 0 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री राइट एंगल भी सही होगा इन दैट केस कि हम लोग किससे इसको किसका रेफरेंस मांगेंगे, इस प्लेन से रेफरेंस मानेंगे, तब ये होगा राइट एंगल। तो दिस मे बी करेक्ट बट 0 डिग्री इज मोर एप्रोप्रिएट आई गेस। नाउ व्हाई डज अ पेंसिल why does a pencil appear bent when it is partially dipped in water? क्यों भाई, वो तो पेज नंबर 72 में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्योंकि क्यों होता है भाई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण होता है एज रेज फ्रॉम पेंसिल डिप्ड इन वाटर व्हेन एंटर्स एयर। कहाँ एंटर करता है? एयर, जब पानी से जब एयर में रिफ्लेक्ट करता है तो क्या हुआ, वाटर से हुआ तो डेंसर टू रेयरर, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वी कैन से दैट लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन। लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पोजिशन, क्योंकि पानी डाल दिया गया तो उसका पोजिशन रेज हो गया और उसी रेज पोजिशन से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसके कारण वो पॉइंट जो है उठा हुआ दिखाई देता है। नाउ सी हियर, ट्रेस द पाथ ऑफ rays in the following ray diagram. Now see the ray diagram. This is the glass plate and this is incident ray, and now when it is passing in the glass through the light is passing through the glass, तो ये क्या हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम में होगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। लेकिन क्या होगा जब वो एमर्जेंट, दिस इज एमर्जेंट रे, तो एमर्जेंट रे जो होगा वो इस तरह से निकलेगा जो कि उसके पैरेलल होगा। जो इसका जो इमेजिनरी लाइन जो हम लोग खींचा वो पैरेलल होगा। सिमिलरली इसका बना करके देखना है कि यहाँ से ये इंसिडेंट रे हो रहा है और ये इसका नॉर्मल है, तो यहाँ क्या होगा, डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस तरह से इमर्जेंट होगा। जस्ट सी चेक दिस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ स्फेरिकल लेंस इज हेल्ड टूवर्ड्स द सन एंड शार्प इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ ब्लैक पेपर, अ होल गेट बर्न्ड इन द ब्लैक पेपर आफ्टर सम टाइम। तो क्या होगा जब कन्वर्जिंग लेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्ज किससे होता है, लाइट एक ही जगह पर कन्वर्ट इकट्ठी कहाँ पर होती है, कौन से लेंस से होती है, तो दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो द लेंस यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी इज कॉन्वेक्स लेंस। व्हाट नेम इज गिवन टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्फेरिकल लेंस एंड द ब्लैक पेपर, द फोकल लेंथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर है ना फोकस नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा, वो फोकल लेंथ होगा। वो जो ब्लैक पेपर जहाँ पर फोकस होगा, जो वो जहाँ पर पेपर जलना शुरू हुआ जो ब्लैक पेपर पर, तो वो उसका फोकस है। फोकस है ना ऑब्टेन किया जाता है, वो जब लाइट एक जगह इकट्ठी होती है, दैट इज़ फोकस ऑफ दैट लेंस। ठीक है। What is the relative advantage of using black paper rather than a white paper? Understood? ये तुम सब लोग जानते हो कि black color is good observer of heat। तो इसके कारण क्या होगा, black लेने से क्या होगा, it will absorb more heat energy and while white reflect, और जानते हो कि white ज़्यादा reflect करते हो,
Therefore, black will burn faster. You can write the complete answer here. Now see here, what kind of lens would form? Now see here, page number 181. You go to page number 181. All the answers are given there. Try to understand and draw, practice the ray diagram. Now an inverted image and magnified image, an inverted and magnified image of an object किसमें बनेगा? कॉन्वेक्स लेंस में. कहाँ रखा जाएगा? When object is between focus and the that is optical center. Okay. An erect and magnified image of the object कब बनेगा? वो भी होगा कॉन्वेक्स लेंस में. When object is between focus and optical center. Okay. Here inverted and magnified image of the, okay, चलो ठीक है. An inverted and diminished image of the object. जब inverted हो और diminished हो, तो यहाँ पर भी सारा inverted and diminished, यहाँ पर inverted की बात हो रही है और diminished की, तो ये भी convex lens ही होगा. क्योंकि अगर हम लोग सोचे कि हाँ concave lens होगा, तो always remember concave lens always forms a virtual erect and diminished image. And the last part of this is an erect and diminished image of the object. Go to page number 184. It is given there. That is concave lens, जो कि always forms image कहाँ पर बनता है? Between F and O. ठीक है, F and O यहाँ पर कट गया है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F के ही बीच में हमेशा इमेज बनता है, जो कि इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होता है. Now next part is draw labeled ray diagram. Draw labeled ray diagram to illustrate the differences between the virtual image formed by using a concave and a convex lens. Go to page number 184 and then 182 pages. Page number these two. You will able to draw the ray diagram. Just take help from that. Now let's move to the next part. This is answer the following questions. A coin is placed at the bottom of the clear glass vessel. An observer moves herself to a position where the coin goes just out of sight of her eyes. Keeping her eyes in that position, she asks her friend to pour some water gradually into the glass vessel. क्या होगा भाई? What would she observe? What would she observe? She will observe when water is filled, coin will become visible. And name the phenomena involved in this observation. Of course, this is refraction of light, the chapter's name. Draw a neat level diagram to justify your answer. It is given on page number 169. Go there and take help from that diagram and draw it in your notebook. In the following figures, identify the light ray that would be the correct emergent refracted light ray in each case. Give reason for your answer in each case. Let's see what is there. Now see here. Now dear students, practice this. Denser to rarer, rare to denser, how the light behaves, how it behaves. Now see here, in this the light is moving from the rarer to the denser and then to the rarer medium. So this is here, it is the normal, and it will, when it is coming to, in the first case it is coming from rarer to denser. तो ये जो normal है, normal के नज़दीक आएगा light, right? It will bend towards the normal. तो ये ऐसे आ रहा है यहाँ तक, जहाँ तक डेंस है वहाँ तक तो यहाँ पर आया, लेकिन जैसे ही ये रेयर मीडियम में आएगा तो रेयर मीडियम में क्या होगा? इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल के अवे जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है. एंड नाउ सी हियर इन द सेकंड क्वेश्चन, क्या चीज़ करना है कि ये वाटर है. अगेन वाटर इज़ डेंसर मीडियम एंड एयर इज़ रेयर. तो ये क्या होगा कि now see here, different positions, different incident rays are shown, where in which all among these three one is correct. Now see here,
अगर डेंसर में आएगा तो वो क्या होगा कि नॉर्मल के नज़दीक आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या P और Q जो है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है, राइट। और ये तो Q तो सीधा स्ट्रेट निकल जा रहा है, वो तो गलत हो जाएगा। और P क्या है, वो नॉर्मल से अवे जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। तो ये जो है R वाला है, ये सही होगा क्योंकि इट इज़ बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ सी हियर, नाउ हियर ग्लास इज़ डेंसर मीडियम एंड एयर इज़ रेयर मीडियम। नाउ सी हियर, ये तो होगा नहीं, बीच वाला लाइन Q तो होगा नहीं। अब एयर डेंसर मीडियम है तो क्या होगा, वो नॉर्मल से, अब ये P वाला जो है ये नज़दीक जा रहा है, रेयरर में क्या होता है, इन नॉर्मल से अवे जाता है, तो ये R वाला सही होगा, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। व्हेन लाइट इज़ मेड टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ ग्लास प्रिज्म, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द नेचर ऑफ द इमर्जेंट बीम। वो डिफरेंट कलर विबज्योर वाला, वो वाला सी पेज नंबर 176 एंड ड्रॉ दैट। With the help of suitable diagram, explain the meaning of the terms center of curvature, optical center and focus. Center of curvature क्या होता है भाई, जो ये जो है ना स्फेयर का जो मिडिल ये होता है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑप्टिकल सेंटर ये बीच में होता है, ये जो लेंस का जो मिडिल पार्ट है, मिड पार्ट है, उसको कहते हैं। जस्ट सी पेज नंबर 177 एंड 178। ऑल्सो इन कीवर्ड्स यू विल फाइंड द आंसर. It's a direct answer, and you have to make the diagram as well. We are given a convex lens of focal length 20 centimeter. Draw a ray diagram to show the nature, size and position of the image formed when the object is kept at a distance of 55 centimeter, 35 centimeter and 15 centimeter. Now see dear children, यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि use appropriate scale. अब अगर तुम बनाओगे, इफ़ यू विल ट्राई टू ड्रॉ द रे डायग्राम यूजिंग फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 55 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को, तुम्हारी कॉपी उतनी बड़ी नहीं है कि 55 सेंटीमीटर इज़ ऑलमोस्ट हाफ मीटर, सो योर नोटबुक इज़ नॉट दैट बिग। तो हाउ यू विल ड्रॉ, यू विल हैव टू मेक अ स्केल, जस्ट मैप में जैसे स्केल बनाते हो ना कि 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और लाइक दैट, उसी तरह से यहाँ पर स्केल अप्रोप्रिएट स्केल बना लेना है। अगर क्योंकि कॉपी में अटाना, कॉपी में उसको मैनेज करना है, तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम मान ले कि 1 यूनिट को 1 यूनिट इक्वल टू मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर का हम लोग फोकल लेंथ ले लेंगे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ ले करके हम लोग डायग्राम बनाएंगे। नहीं, 5 लेने से ज़्यादा सही रहेगा आई गेस, 5, क्योंकि ये सारा 5 का मल्टीपल है, ऑल दीज आर मल्टीपल ऑफ 5। हाँ सही है, दिस इज़ करेक्ट। तो 5 के लिए ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब 55 सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट को जो हम लोग रखेंगे, तो स्केल, यूज़ द स्केल, तो 55 का क्या हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 11। तो हम लोग कहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को 11 सेंटीमीटर पर। अब अगर 11 सेंटीमीटर भी ज़्यादा लगता है तो थोड़ा और छोटा स्केल बना सकते हैं, तो इट इज़ अप टू यू। एंड नाउ रिमेंबर, व्हेन यू विल ड्रॉ द डायग्राम प्रॉपरली, द इमेज विल फॉर्म एट द राइट प्लेस, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब 55 सेंटीमीटर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बियॉन्ड हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ 20 है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, कितना हो जाएगा, अबाउट 40 सेंटीमीटर। तो ये क्या है 55 40 से ज़्यादा है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F एंड 2F फॉर्म होगा। अब ये 35 सेंटीमीटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर का हो गया, तो 35 सेंटीमीटर क्या हो गया, कहाँ पर होगा, बिटवीन 2F एंड, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है 2F एंड F के बीच में, राइट। तो कहाँ पर बनेगा इमेज, बियॉन्ड 2F बनेगा, ठीक है।
उसी तरह से अगर 15 सेंटीमीटर पर इमेज है तो इसका मतलब कहाँ पर आ गया, इसका मतलब, और 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसका मतलब 15 सेंटीमीटर कहाँ पर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो गया। उस केस में कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, बिटवीन 2F एंड F, और क्या चीज़ होगा, सेम साइड में लार्ज एंड इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। जस्ट यू ट्राई इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। वी आर गिवन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है कॉन्केव, जो बीच में से थिन होता है, दैट इज कॉन्केव लेंस। So of focal length 15 centimeter, draw a ray diagram to show the nature, size and position of the image formed when the object is kept at the distance of 30 centimeter, 15 centimeter। मतलब वही चीज़ करना है कि appropriate scale use करना है। and you know that कि concave lens में image formed is always virtual, erect and diminished। okay, so try to do this। Now let's move to the next part. Now what type of lens is used as a magnifying glass? Of course, convex lens. How is the object positioned with respect to the lens? Draw the appropriate diagram, ray diagram. The object must be positioned at a distance less than the focal length from the lens। okay, so draw the diagram from the book, take the help of the book, and let's move to the next part। Khushi listened with great attention and interest when her teacher explained the focusing action of convex lens through the black paper experiment। The teacher went on to say that we must have a similar focused and dedicated approach towards the task at hand। yes, whatever you task in your hand, you must be focused to complete it। I hope you will complete the question answer at this moment। On reaching home, Khushi shared her teacher's idea with her mother। Her mother fully supported her teacher's suggestion and advised Khushi to do her studies in focused and concentrated way। She always advised Khushi not to get distracted by messaging on social media while she was studying। Khushi promised to do so। Khushi is a good girl। So dear student, in every book, in the every chapter's ending, in exercise part, so write the value depicted by Khushi's teacher, that is Khushi की जो teacher है, she is dutiful and she is motivating, she motivates her students, and while Khushi is sincere and obedient। And now the second question, draw a ray diagram showing the focusing action of a convex lens in the black paper experiment mentioned above। You can do it कि फोकस में जब फोकस इमेज जो फोकस पर बनता है वो वाला डायग्राम ले लेना है फ्रॉम द बुक, और यू कैन do it of your own। Have a group discussion with your friends on the pros and cons of social media in your life। That is the most glaring question of these days। People are quite involved on this social media। So what are the advantages and disadvantages? There are advantages and there are disadvantages as well, we have to discuss। So that's all for today, that's all। Thank you, bye।